Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we will discuss Western philosophers' perspective on education. Let's start with the general objective of this unit. After reading this unit, students will be able to describe John Locke's theory of knowledge, discuss the role of parents in education of children, evaluate John Davies' philosophy of education, describe principles of curriculum formation, describe the impact of John Davies' philosophy on modern education, analyze Herbert's theory of ideas, discuss the Herbert's process of instructions. Let's start with John Locke. John Locke was born on 29 August 1632 in the southwestern of England. His father was a lawyer and small landowner. Little is known about John Locke's early education. Locke studied at were centered upon the classical languages of Latin and Greek, and he also began to study Hebrew, an old language. He was a hardworking boy and elected to work in scholarship. He also got two major scholarship of at both ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज. ठीक है, थोड़ी बायोग्राफी है जॉन लॉक के हवाले से, उनकी पैदाइश और उनकी अर्ली एजुकेशन के हवाले से, और ये कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी उनका जो था उनकी एक्सपर्टीज़ थी, और बाद में लेटर ऑन उन्होंने स्कॉलरशिप भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से हासिल किए थे. Locke's formal course at Oxford would have included classic, rhetoric, logic, morals, and geometry, and he completed his Bachelor of Arts in 1656. This was followed by further with Master of Arts in June 1658. Other subjects of concern: mathematics, astronomy, history, Arabic, natural philosophy, botany, chemistry, and medicine. All Locke's published work, including those that had been issued anonymously, were equated to the Bodleian Library, Oxford. Work in the field of education: essay concerning human understanding, two traits of government, some thoughts concerning education, की उनकी बुक्स के नेम है. Theory of knowledge: for Locke, all the knowledge comes exclusively through experience. He argues that at birth the mind is blank slate. Humans fill with ideas as they experience the world through the five senses. He began by rejecting the doctrine of innate ideas associated with Plato. Differences in the ideas of people, not because of individual difference and their ability to perceive, but difference in their experience and perspective. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ नॉलेज के हवाले से बात करें, तो वो कहते हैं कि जो चीज़ें हम परसीव करते हैं, हमारा माइंड जो एक्सपीरियंस करता है, वही जो है वो हम नॉलेज को गेन करने का यही सोर्स है. और जैसे कि वो कहता है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल स्लेट की मानी जो है वो बिल्कुल खाली होता है, ब्लैंक होता है, लेकिन फिर फुल ऑफ एक्सपीरियंस के साथ वो जो है वो उसका माइंड जो है वो फिर एक्सपीरियंस गेन करता है, और वो फिर जो है वो फुल एक्सपीरियंस के साथ वो बढ़ता रहता है. तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि हम अपने आइडियाज़ जो हम सोचते हैं, हमारी थाट्स जो होती हैं, इससे हम अपने एक्सपीरियंस अपने को जो देखते हैं, परसीव करते हैं दुनिया को, तो हम अपने फाइव सेंसेस से बेकार लेके आते हैं. और जिन्होंने प्लेटो के जो उनका स्कूल ऑफ थॉट था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था. और इसके हवाले से ये बात करते हैं कि लोगों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं. वो कहते हैं सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंस ही एक एलिमेंट नहीं होता, बल्कि हर इंसान की जो है वो डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी परसेप्शन डिफरेंट होती है, उनके एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, उनकी थॉट्स डिफरेंट होती है, इस वजह से भी वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. द क्वेश्चन इज़ हाउ देन वॉज नॉलेज एक्वायर्ड, हाउ माइट मैन कम टू यूनिवर्सल एग्रीमेंट. आंसर टू दिस क्वेश्चन इन वन वर्ड फॉर्म एक्सपीरियंस. ठीक है, तो कहते हैं कि इंसान फिर तजुर्बों से सीखते हैं दुनिया में. तो अगर हम सब क्वेश्चन करते हैं कि नॉलेज कहाँ से गेन किया, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कैसे पता चला, तो सब चीज़ों का जवाब जो है वो है तजर्बा. But experience itself gained via the senses was not sufficient of itself for knowledge. That also required the active agency of mind upon such experience. ठीक है, तो कहते हैं सिर्फ एक परसेप्शन ही नहीं है कि हम खुद से जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही काफ़ी नहीं है. इसके अलावा जो है ये भी है जो है एक्टिव माइंड जो है, जो हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से सीखते हैं, तो ये भी इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. He acknowledged the possible existence of certain eternal verities, eternal
वेरिटीज़ हैं, गॉड, यूनिवर्स, मोरालिटी, द लॉ ऑफ नेचर है, हुज सेंस माइट बी कन्फर्म्ड rather than discovered by experience. He also admitted the existence of some innate powers or qualities. In spite of these qualifications, Locke inclined towards nurture and then nature. Categorized as the founder of empiricism, from the body, Locke turned to the mind. He believed that parents should personally exercise firm एंड क्लोज अथॉरिटी ओवर देयर चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज. ठीक है, तो इनका पर्सपेक्टिव ये था कि वो कहते हैं कि डिफरेंट जो है अटर्नल एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, यूनिवर्स है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, लॉ ऑफ नेचर हैं, तो उनके बारे में इंसान जो है अपनी क्वालिटीज़ को, इनबिल्ट क्वालिटीज़ को जो है वो यूज़ करते हुए सीखता है अपने एक्सपीरियंस से. अपने नेचर नर्चर क्या होता है, वट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेचर, नेचर क्या होता है हमारी फितरत होती है, नर्चर क्या होता है हमारा सराउंडिंग, इर्द गिर्द का जो हमारा माहौल होता है वो हमारा नर्चर कहलाता है. तो वो कहते हैं कि जो हमारे नेचर और नर्चर है ये इसको ब्रुए कार्ड ला के अपने एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है. तो इनको एम्पिरिसिज्म का फाउंडर भी समझा जाता है. बॉडी माइंड की ये एक्टिवनेस की बात करती हैं. और इसके अलावा वो कहते हैं कि बच्चों को पे जो है पेरेंट्स की फुल जो है वो उन पर उनका कंट्रोल होना चाहिए. अर्ली एज में अथॉरिटेटिव रोल होना चाहिए और उनको पर्सनली उनको देखना चाहिए बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, उनकी मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से. ठीक है. Parents and children believed in the importance of observing children, tailoring education of children needs and capacities. Food for children should be plain and wholesome, with sugar, salt, and spicy. Favor of fruit: apples, pears, strawberries, cherries, raspberries. Less keen on melons, peaches, plum, and grapes. Clothes should not be too tight, neither for boys and nor for girls. ठीक है, तो ये उनकी थॉट्स थी कि बच्चों का पेरेंट्स का जो है वो बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए. पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों पे नज़र रखें, उनकी नीड्स और सलाहियतों को भी ऑब्ज़र्व करें. उनका खाना जो है वो सादा लेकिन अच्छा होना चाहिए, बहुत स्पाइसी नहीं होना चाहिए, और फ्रूट्स उनको दें, हेल्दी डाइट. और जो ये ग्रेप्स है, प्लम, जो मतलब लेमन जो थोड़े तुर्श होती हैं, सॉर होते हैं, थोड़े से बिटर हैं, इनसे थोड़ा सा बचा जाए. Beds should not be excessively comfortable. Meal times not necessary regularly. Or advise parents and tutors to study their children and to note their dispositions and dislikes. Toys should be simple and strong rather than expensive and fragile. A good tutor or indeed a good parent would be able to encourage and to satisfy the question of children. ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि बेड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो बच्चों के, और उनके मील टाइम भी स्पेसिफिक नहीं हो कि जब बच्चों को मतलब भूख लगती है वो उनको खाना चाहिए होता है. तो कह रहे हैं कि इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट फूड नहीं होना चाहिए. और पेरेंट्स को ये टीचर्स को जो है बच्चों की लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी ख्याल रखना चाहिए. खिलौनों के बारे से कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव ना ले, बल्कि सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. और पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स और अच्छे टीचर होने के नाते वो कहते हैं कि बच्चों को वो सेटिस्फाइड क्वेश्चन के आंसर जो है वो प्रोवाइड करें. ठीक है. पेडागोजिकल थियरी में है एजुकेशन मेक्स द मैन. Locke possessed an empty mind, a blank slate that is filled by experience. Locke emphasized on the role of experience in the formation of mind. His concern with the false associations of ideas has led that one to passive rather than active nourishment of mind. ठीक है, तो वो कहते हैं कि वही बात जो पहले उसने की थी कि आपका जो बच्चा जो है उसका एक माइंड जो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की मानद होता है और वो एक्सपीरियंस के साथ उसको फील करता है. तो वो कहते हैं कि वो रोल ऑफ एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ माइंड पे बहुत ज़्यादा इन्होंने एम्फोसाइज़ किया है. और ये चीज़ों को हिज कंसर्न विद फॉल्स एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ हैज़ लीड दैट वन टू पैसिव rather than एक्टिव नोरिशमेंट. ठीक है, तो कहते हैं कि पैसिव होने की बजाय आप एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करें और इस तरह से आपकी जो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी. बॉडी एंड माइंड के हवाले से Locke's advised parents to carefully nurture their children's physical habits before pursuing their academic education. This seemingly simple generic innovation has proven to be one of Locke's most enduring legacies. ठीक है, तो कह रहे हैं कि बॉडी माइंड के हवाले से बात करते हैं कि बच्चों के जो नर्चर है, माहौल है, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि गुड हैबिट्स है वो डेवलप कर सकें अपने अंदर. उनकी एकेडमिक एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए और वो जेनेरिकली इन्वॉल्व हो ताकि वो जो है वो कहने कि ताकि उनकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए. उनकी लेगेसी थी एजुकेशन के हवाले से. विर्चू एंड रीज़न. ही डिफाइंस विर्चू एज अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्फ डेनियल एंड रैशनैलिटी. दैट अ मैन इज़ एबल टू डिनाई हिमसेल्फ हिज ओन डिज़ायर्स, क्रॉस हिज ओन इंक्लिनेशंस,
and purely follow that reason direct as best, though the appetite lean the other way. Locke was convinced that children could reason early in life and that parents should address them as reasoning beings. ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो सेल्फ डैनियल अपनी ज़ात और रैशनल थाट्स को जो है वो कंबाइन करते हैं वर्चुअल रीज़न के हवाले से, और वो ये कहती हैं कि मतलब इंसान की कुछ जैसे ख्वाहिशात होती हैं, उसकी अपनी चीज़ों की लॉजिक्स होती हैं, तो वो अपनी ओन वे में भी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके जो है वो सीखता है। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि बच्चा भी रीजंस को चीज़ों को लॉजिकली जो है वो देखता है, परसीव करता है और अर्ली एज में, और चाहे पेरेंट्स चाहिए कि वो बच्चों को जो है वो उस तरह से लॉजिकली और रीज़न के हवाले से जो है वो उनको डील करें। ठीक है, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर प्रोवाइड करें, उनकी नेचर को अंडरस्टैंड करें, उनकी एबिलिटीज़ और नीड को। Academic curriculum education is about instilling virtue and what Western educators would now call critical thinking skills. Locke maintains that parents or teachers must first teach children how to learn and to enjoy learning. Locke's curricular recommendations reflect the break from scholastic humanism and the emergence of a new kind of education, one emplacing not only science but also practical professional training. अब इसमें भी बात करते हैं एकेडमिक करिकुलम के हवाले से। वही कहते हैं कि सिर्फ वो जो इनकी क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को जो है वो प्रोवोक करने की बात करते हैं, जो इन्होंने एस्पेक्ट्स पर रोशनी डाली थी, तो कहते हैं कि इसको अब क्रिटिकल थिंकिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, जो लॉ की लेगेसी थी, तो कहते हैं कि पेरेंट्स और टीचर को चाहिए कि बच्चे को वो सिर्फ पढ़ना ही ना सिखाएं, बल्कि उनको इन्जॉय करना, अपनी लर्निंग को इन्जॉय करना भी सिखाएं, टू लव देयर स्टडी, टू लव नॉलेज। तो इस तरह कहते हैं करिकुलम इस तरह का रिकमेंड करती हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप ह्यूमनिज़म और डिफरेंट जो न्यू लॉज हैं, न्यू काइंड्स ऑफ एजुकेशन है, उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, तो साइंस ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर भी ये ज़्यादा जोर देती हैं। फिलोसफी क्या थी इनकी? लॉक एग्जामिन्स द नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड द प्रोसेस बाय विच इट नोन्स द वर्ल्ड। Rejecting the traditional doctrine of innate ideas, Locke believed that the mind is born blank, a tabula rasa upon which the world describes itself through the experience of the five senses। ठीक है, वही बातें जो हमने डिस्कस की हैं, क्योंकि फिलोसफी की लेगेसी यही थी कि इंसान जो है वो अपनी जो है वो अपनी दुनिया खुद बनाता है, अपनी नेचर नर्चर इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द से अपने माहौल से सीखता है, लर्न करता है, एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ों को सीखता है, और वक्त के साथ साथ वो जो है उसका जो माइंड है फील होता है विद एक्सपीरियंस। प्रायोरिटीज़ इन एजुकेशन की हम बात करें, लॉक्स हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ इन द एजुकेशन ऑफ अ जेंटलमैन सन्स वाज कंटेन इन 4 एलिमेंट्स विर्चू, विजडम, ब्रीडिंग एंड लर्निंग। ठीक है, इन्होंने 4 सन्स से उसको एग्जाम्पलीफाई किया है कि अगर 4 सन इसमें विर्चू का जो क्या रोल है वो है वॉज प्लेस फर्स्ट इन द एजुकेशन ऑफ अ जेंटलमैन बाय लॉक्स एज एब्सोल्युटली रिक्विसाइड टू मेक हिम वैल्यू एंड बिलव बाय अदर्स, एक्सेप्टेबल और टॉलरेबल टू हिमसेल्फ। ठीक है, तो विर्चू की जो है वो पोजिशन सबसे पहले आती है। उसके बाद विजडम का रोल है। विजडम वाज टू बी अ प्रैक्टिकल काइंड, अ मैन मैनेजिंग हिज बिजनेस एबली एंड विद फोरसाइट इन दिस वर्ल्ड। इट डिडंट मीन बीइंग क्राफ्टी और कनिंग बट रेदर देन टू बी ओपन, फेयर एंड वाइज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपको कनिंग नहीं होना चाहिए बल्कि ओपनली और वाइज से बिहेव करना चाहिए। तो ये एजुकेशन में सेकंड पार्ट पे विजडम आ जाता है। थर्ड पे है गुड ब्रीडिंग, यानी फिर सोशल डीलिंग कैसी है, वॉज अ सब्जेक्ट अपॉन विच लॉक हैड मच टू से। अ वेल प्रेड पर्सन वुड एग्जिबिट गुडविल एंड रिगार्ड फॉर ऑल पीपल एंड फॉरगो द हैबिट्स ऑफ रफनेस, कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपके सोशल आपका रिलेशन कैसा है, आप कैसे हैं, एक्टिविस्ट हैं आप, सोशल आपका इंट्रैक्शन दूसरों के साथ कैसा है। तो गुड ब्रीडिंग होगी तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो उसके मालिक होंगे। Crisis and criticize and contradiction, not that children should be encouraged. Finally, Locke came to learning. Locke wanted all sons of gentlemen to acquire the basis of learning, to read, to write, to express themselves clearly, and to count. Now come to the John Dewey. John Dewey जो हैं इनको pragmatist समझा जाता है, greatest modern thinker हैं, time thinker, pragmatist थे, born on October 20, 1859 in Vermont, USA, has greatly influenced practice of education, chairman of Department of Philosophy and Pedagogy in University of Chicago, established first major educational laboratory school in 1896, visited countries like India, China, Turkey, Russia and Japan.
तो ये इनकी थोड़ी बायोग्राफी थी। ये इनकी बुक्स हैं जो उन्होंने जॉन डेवी ने लिखी थी। स्कूल एंड सोसाइटी है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, इंडिविजुअलिज्म ओल्ड एंड न्यू है, रिकन्स्ट्रक्शन इन फिलोसफी है। ठीक है, प्रोलिफिक राइटर हैं और इनकी बुक्स के नेम है माई पेडागोजिक क्रीड, स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड चाइल्ड, हाउ वी थिंक, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन, स्कूल्स ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फिलोसफी ऑफ जॉन डेवी जो है इनकी फिलोसफी, no internal values, truth is that which works, experience is the core of philosophy, thoughts and actions are contemporary complementary, everything is provincial, faith in democracy, relationship between individual and society, experimentalism, instrumentalism and utilitarianism। तो ये इनकी फ़िलासफ़ी थी, इनकी लेगेसी थी एजुकेशन के हवाले से कि वो भी कहते हैं कि ऐसा नॉलेज आपके लिए जो काम आए आपके लिए वही ट्रूथ है, और जो एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, आपके एक्शंस और थॉट का जो है वो नतीजा होता है। और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं, इंडिविजुअल और सोसाइटी में हार्मनी की बात करते हैं, हम आहंगी की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड को ये फ़रोग देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है इनका। Education is a development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। So इनकी नज़दीक एजुकेशन की यही डेफिनेशन थी कि अपने इन्वायरमेंट पे कंट्रोल करना और अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करना। एम्स ऑफ एजुकेशन जो है क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़ है, मैक्सिमम ग्रोथ है, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल है, सोशल एफिशिएंसी एंड रिच प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, तो ये इनकी एम ऑफ एजुकेशन थे, इनके बेसिक। फंक्शन ऑफ एजुकेशन में है, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, एजुकेशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ एजुकेशन, एजुकेशन लीड्स टुवर्ड्स सोशल एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस इज़ द बेसिस ऑफ दिस फिलोसफी। करिकुलम के हवाले से है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड एक्टिविटीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। मेथड्स ऑफ टीचिंग है, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड। डिसिप्लिन इज़ नॉट द एंड, फ्री डिसिप्लिन है, टीचर मस्ट नॉट द डिसिप्लिन कॉन्शियस, यानी इसमें वो कहते हैं कि बच्चों की चाइल्ड सेंटर इनकी फिलोसफी है, तो टीचर का रोल इसमें लिमिटेड और फैसिलिटेटर का है। टीचर जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऑब्जर्व, प्लान एंड एनकरेज पीपल्स एक्टिविटीज़, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, अ फ्रेंड एंड अ हेल्पर, encourage democratic cooperation as well as intellectual and aesthetic development, professionally trained and efficient, resourceful and sympathetic। ठीक है, तो टीचर का रोल जो है वो सिंपैथेटिक होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, इंकरेज करे स्टूडेंट्स को उनकी एक्टिविटीज़ प्लान करे और उनको ऑब्जर्व करे और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करे, और एक हेल्पर और फ्रेंडली होना चाहिए। स्कूल जो है एक्सटेंशन ऑफ होम, अ मिनिएचर सोसाइटी, स्कूल एज अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। कंट्रीब्यूशन में है, गिवन अ प्रोग्रेसिव आउटलुक टू एजुकेशन, living and doing itself in its education, preparation for life through life experiences, social efficiency, child-centered education, core curriculum, integrated curriculum and activity-based curriculum, democracy in education, experimental school। ठीक है, तो ये इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन थी कि वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिविज्म की बात करती हैं, और ये एजुकेशन में वो कहते हैं कि प्रिपेयर करें आपको फ्यूचर लाइफ के लिए, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ के काबिल बनाए आपको एजुकेशन, और सोशल एफिशिएंसी होनी चाहिए, कोर करिकुलम इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इसमें डेमोक्रेसी, एक्सपेरिमेंटल मेथड और चाइल्ड सेंटर की फिलॉसफी है। क्रिटिसिज्म में है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, नो क्लियर एम्स ऑफ एजुकेशन। जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया ना इनकी थ्योरी को सॉर्ट, तो उन्होंने इनको ये पॉइंट्स उठाए थे, इनमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की जो है वो उन्होंने बात नहीं की, लैक ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं और क्लियर एम ऑफ एजुकेशन नहीं है इनके। टू मच एम्फोसाइज ऑन यूटिलिटी, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकलिज्म, too much reliance on experimental method, project method is costly and not suitable every time, heavy responsibilities on teachers। ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म वाले इस पर क्रिटिसाइज ये करते हैं कि ये इनके कोई क्लियर एम ऑफ एजुकेशन नहीं थे, और प्रैक्टिस की प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, जो कि इतनी ईजीली क्लासरूम लेवल पे फिजिबल नहीं होते, कॉस्टली होते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, टीचर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल ली है। नेक्स्ट है हर्बर्ट जी, जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट 4 मई 1776 टू 14 अगस्त 1841 इनका टाइम पीरियड था। वाज अ जर्मन फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ पेडागोजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। अर्ली एजुकेशन ऑफ हर्बर्ट वाज accomplished by his mother. He began to write about spiritual subjects from his early childhood.
For higher education, he joined the Jena University, where he was powerfully influenced by the ideology of new humanism. He inclined that only through education that spiritual values could be inculcated in the human beings. ठीक है, तो ये जो है इनकी बायोग्राफी थी कि अर्ली एजुकेशन अपनी मदर से ली थी, और वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स जो है वो उन्होंने हासिल किए थे अर्ली एजुकेशन में, और बाद में उन्होंने प्रॉपर हायर एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करके उन्होंने ली थी। और ह्यूमनिज़म का जो है न्यू ह्यूमनिज़म का जो है वो कॉन्सेप्ट जो का बहुत फेमस था आइडियोलॉजी, और ये उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, यानी मुतासिर थे। Herbert's theory of ideas है man has certain mental sensations in if he confronts certain objects. He becomes conscious of them and acts in the most appropriate way towards them. These simple elements of consciousness are ideas. When men resist in face of destructive forces, ideas take root in his mind. These ideas do not disappear easily. They struggle to be uppermost in the consciousness. All communication of new knowledge should be a development of previous knowledge. ठीक है, तो इनके नज़दीक की जो थेरी थी आइडियाज़ के वैसे ये कहते हैं कि हम सर्टन जब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं अपने राउंड इर्द गिर्द अपनी दुनिया में चीज़ों को, तो हम मेंटल सेंसेशन ही होती है, हम सोचते हैं, परसीव करते हैं, अपनी सेंसरी मोटर स्किल को यूज़ करते हैं, फाइव सेंसेस को यूज़ करते हैं, कॉन्शियसनेस को यूज़ करते हैं, अप्रोप्रिएट हम वेज में जो हम एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने कॉन्शियस सब कॉन्शियस चीज़ों से मिलकर जो है आइडियाज़ जनरेट होती हैं, और लेकिन कहते हैं कि इसकी सारी अल्टीमेट रूट जो है वो हमारा माइंड ही है, जहाँ से हम परसीव करते हैं, और आइडिया जो है हमारे वैनिश नहीं हो सकते इतनी जल्दी, जो है डिसअपियर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में रहती हैं ये। और इस तरह से वो कहते हैं कि ऑल कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज। इन नया नॉलेज है वो प्रायर नॉलेज पर, प्रीवियस नॉलेज पर ही बेस करता है। हर्बर्ट्स क्लासिफाइज आइडियाज इन 3 डिविजन्स, सिमिलर, डिस्पार्ट और है कॉन्ट्रेरी। Each new idea is accepted, modified or rejected according to its being similar, dissimilar or contrary. The fate of every new idea depends upon the harmony or conflicts with the previously existing idea. This mental phenomenon goes on whenever something is presented to our consciousness. The accepting, rejecting or modifying of ideas in our minds is called perception. ठीक है, तो कहते हैं कि 3 जो है वो उन्होंने क्लासिफिकेशन किए कैटेगरीज पे। उसने कहा कि कोई आइडिया रिजेक्ट एक्सेप्ट होता है, या सिमिलर होता है, या वो डिसिमिलर होता है, डिस्पैरेट होता है यानी कि मुख्तलिफ होता है, या फिर कॉन्ट्रेडिक्स में कोई तजाद आ जाता है। ठीक है, एब्जॉर्बेशन एंड एसिमिलेशन, फॉर्मल स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट, एब्जॉर्बेशन इनटू क्लियरनेस एंड एसोसिएशन, एसिमिलेशन इनटू सिस्टम एंड मेथड। ठीक है, तो कहते हैं चीज़ों को ऑब्जॉर्व करें और आप जो चीज़ों को वाबस्ता करें, एसोसिएट करें। एसिमिलेशन में कहते हैं सिस्टम मेथड की वो बात करती हैं। हर्बर्ट साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट पर्सन हु कंबाइन एथिक्स विद साइकोलॉजी एंड गिव राइज टू अ न्यू एजुकेशनल साइंस। With the help of ethics, he formulated the aims of education. With the aid of psychology, he laid stress upon the methods of teaching. Mind is made up of 3 parts: knowing, feeling, willing. Herbert's pedagogical method. Herbert's pedagogical method was divided into discrete steps: preparation, presentation, association, generalization, application. In preparation, teachers introduce new material in relation to students' existing knowledge or interest, as so to install an interest in the new material. ठीक है, तो कहते हैं कि 5 पेडागोजीज के उन्होंने 5 कैटेगरीज उन्होंने बताई है, डिस्क्रीट स्टेप किए अलग थलग। उन्होंने कहा कि प्रिपरेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, चीज़ों को प्रेजेंट करती हो, फिर आप एसोसिएट करती हो, देन जनरलाइज करती हो, और फिर अप्लाई करती हो। तो टीचर जब किसी भी न्यू आइडिया को या न्यू लर्निंग मटीरियल को बच्चों को सिखाता है, तो बच्चों के जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उस पर तो बेस करके आप यानी जनरल से कॉम्प्लेक्स फिनोमेना की तरफ जाती हैं। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हुए। एम्स ऑफ एजुकेशन में है, ही डिज़ायर्स दैट द pupils मस्ट बी so educated as to possess strong moral character. Teacher can successfully help his pupil to form high ideals according to his theory of ideas, with to inner freedom, creation of influence. ठीक है, तो इसमें वही जनरल एम ऑफ एजुकेशन है।
करिकुलम अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर है, साइंटिफिक में है, फिजिकल साइंस, अर्थमेटिक टुगेदर विद इंडस्ट्रियल है, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, इन पर बेस करता है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।